Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to talk about MBA admission process in NSUT. So without any delay, let's start the video. So MBA was started at NSUT in 2019. NSUT offers two kinds of MBAs. First is MBA General, जो normally सब लोग करते हैं for marketing, HR, finance, operations, blah blah blah. And the second one is MBA IEV, which is for startups, innovations, etc. So you can apply for both, whichever you are interested in. So the eligibility, but in this video, I'm gonna talk about only MBA Journal because I don't have any knowledge about MBA IEV. Let me know if you want to know in the comment section. मैं MBA IEV वालों बच्चों से बात करके आपसे के साथ शेयर कर सकती हूँ. So the eligibility criteria for MBA in NSUT, which is the same for IGDTU and DTU. So first thing is a bachelor's degree. Open regular कुछ भी हो सकता है, but it should be from a good university or authorized university. Second is your CAT score or your MAT score, or you can go for 1 year of experience. So bachelor's degree plus CAT score or bachelor's degree or MAT score. Third is bachelor's degree plus 1 year of experience. If you have any three of them, you can apply for MBA in NSUT. So the courses offered in NSUT are for the journal only are HR, marketing, BA, finance and operations. So you can choose any two specializations among these courses, and you have to choose those specializations in the second semester in Now the fee that you have to give in NSUT is, to be precise, 4,48,000. It can go up in the next year or it might not. So this is the approximate idea that I am giving you. Now coming forward to the selection process. So this is a bit complicated, you can say, and for me it isn't. So the first process that goes is that you fill the form. After filling the form, there is a merit list that comes. उसके अंदर अगर आपका नाम आता है तो you have been called for the interview. तो वो जो मेरिट लिस्ट है वो काफ़ी सारे बेसिस पर चेक की जाती है. तो आफ्टर द मेरिट लिस्ट एंड द इंटरव्यू देयर इज़ वन मोर लिस्ट दैट कम, दैट इज़ द रैंक लिस्ट. आपको एक रैंक अलॉट की जाती है आफ्टर इंटरव्यू. तो वो रैंक कैसे बनती है? उसके अंदर 80% ऑफ योर कैट मैट और ग्रेजुएशन स्कोर होता है, प्लस 20% ऑफ द इंटरव्यू. इंटरव्यू में जो भी आप स्कोर करते हो वो आपको नहीं बताया जाता है, आपको जस्ट अच्छे से इंटरव्यू देना होता है, एंड उसका 20% आपका मेन रैंक जो बनती है उसके अंदर लगता है. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल व्हेन इट कम्स टू माइन, मेरी कैट में परसेंटाइल थी 80.26 एंड माई ग्रेजुएशन स्कोर वॉज 84%. तो मेरा कैट का 80% लगा, डैट इज़ 64 समथिंग, विल गो 64 समथिंग, एंड 20% वॉज माई इंटरव्यू, एंड उसको कंबाइन करके आई गॉट अ रैंक एज माई 33. माई रैंक वॉज 33. तो that's how you will get your rank, and on that basis you will be getting your colleges. If you have a higher rank which is from 1 to 100 or 2 or 150 till 150, you will be getting all the colleges like from DTU, IGDTU and NSUT. but after 150 DTU की सीट भरनी शुरू हो जाती है, फिल हो जाती है ऑलमोस्ट पूरी की पूरी, क्योंकि मेनली जिनकी भी हायर रैंक्स होती है दे डोंट गो फॉर एनी अदर कॉलेज बिकॉज DTU इज़ गिविंग MBA फ्रॉम लाइक लास्ट 15 years approximately. So yeah, and MBA is very new in NSUT, so people rely more on DTU for the placements and everything else. I took NSUT because NSUT was very close to my house. Secondly, मुझे लगता है कि NSUT भी उतनी ही बेटर प्लेसमेंट्स दे सकता है इफ़ यू आर गुड एट टेकिंग इट.
So I took the risk of taking NSCT. So that's the selection process we go through. उसके बाद राउंड्स कितने होते हैं या काउंसलिंग्स कितनी होती हैं? फर्स्ट काउंसलिंग होती है जो टॉप के जो स्टूडेंट्स होते हैं, टॉप मतलब मेरे टाइम पे 300 अप्रॉक्स कुछ इन्होंने रैंक्स दी थी, तो टॉप स्टूडेंट्स मतलब टॉप 200 स्टूडेंट्स वर ओनली गेटिंग colleges, admissions in these colleges in the first counseling round. The second is spot round. Direct spot round आता है इसके बाद, क्योंकि half of the seats we assume कि fill हो जाती हैं, तो इसके बाद स्पॉट राउंड आता है. स्पॉट राउंड के अंदर नेक्स्ट जो जिनको सीट्स नहीं मिली होती या फिर जिन्हें अपग्रेड करानी होती है वो सब वो करा सकते हैं. इफ़ यू हैव अ गुड रैंक एंड यू टुक NSUT initially and then you want to change, that is the upgradation process, जो जिसकी नोटिफिकेशन CMAC पोर्टल पे भी दी जाती है. तो आपको वो रेगुलरली चेक करना बहुत इम्पॉर्टेंट है. मैंने मिस कर दिया था अपना अपग्रेडेशन, सो आप ध्यान रखना प्लीज़. CMAC पोर्टल बार बार चेक करना कि कब ऑल ऑफ सडन दे गिव थिंग्स आउट, तो दिन रात चेक करना. मेनली 7:30 के अराउंड इन द PM टाइम, in the evening time they give notifications and they publish things out, so make sure you check all that things as well while the admission process. One more thing I would like to mention here is कि NSUT during admissions हमेशा CAT को preference देता है. So अगर किसी की अगर रैंक्स क्रिएट हो रही हैं और आप एक मैथ स्कोर वाले कैंडिडेट हो और एक कैट स्कोर वाला कैंडिडेट है, तो एक कैट स्कोर वाले कैंडिडेट को इम्पोर्टेंस दी जाएगी. बट व्हाट इफ़ आपका मैथ स्कोर और कैट कैंडिडेट का कैट स्कोर अगर मैच कर जाता है, तो उस टाइम पे भी कैट स्टूडेंट को प्रायोरिटी दी जाएगी. एंड आफ्टर दैट अगर आपका स्कोर कैट स्टूडेंट से ज़्यादा है इन योर मैथ, तो आपको प्रायोरिटी दी जाएगी. सो द बेसिक लाइन हेयर इज़ if you have given CAT, you have a preference over others because you will be given priority amongst other candidates. So make sure you do that. And फॉर इंटरव्यू के लिए टिप्स ट्रिक्स और कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो उसकी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी. लाइक टू मेंशन हियर इज़ कि व्हेन यू गो फॉर द एडमिशन प्रोसेस, मेक श्योर कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स अपडेटेड हों. दिस इज़ फॉर द SC ST वाले जो जिनके पास कोटाज होते हैं ना, उन लोगों के लिए. इफ़ यू हैव अ कोटा, मेक श्योर कि आपका डॉक्यूमेंट पूरा अपडेटेड हो, बिकॉज बाद में बहुत इशू होता है एंड दे वोंट गिव यू सीट. दे विल बी लाइक कि नहीं, ये तो सीट आपको नहीं मिलेगी, और आपका जो प्रेफर्ड कॉलेज होगा उसमें भी आप नहीं एडमिशन ले पाओगे. एंड वन मोर थिंग कि जो प्रेफरेंस है ना, ड्यूरिंग जब आप एडमिशन फॉर्म फिल कर रहे हो तब भी आप प्रेफरेंसेस फिल करते हो, बट ऐसा कुछ नहीं है कि आप दोबारा रीफिल नहीं कर सकते. आप एंड मोमेंट तक, सीट लेने से पहले तक अपना डिसीजन चेंज कर सकते हो और दूसरी किसी तीनों में से किसी भी कॉलेज को चूज़ कर सकते हो. बट वंस यू हैव गिवन द DD, उसके बाद आपको अपग्रेडेशन करानी पड़ती है, क्योंकि आप उस टाइम पे जब आप DD दे देते हो तब आपने वो सीट ले ली होती है. तो आपको अगर चेंज करना है कॉलेज तो आप अपग्रेडेशन कराते हो अपनी सीट की फ्रॉम वन कॉलेज टू द अनदर कॉलेज एज़ पर योर प्रेफरेंस, जो कुछ भी हो सकता है. सो दैट्स इट फॉर द वीडियो. आई होप ये आपको थोड़ा हेल्प करे. एडमिशन प्रोसेस मेनली जो फॉर्म्स हैं वो मार्च में निकलते हैं, सो मेक श्योर कि आप मार्च में चेक कर रहे हो बार बार फॉर्म्स. मार्च से पहले IIMS वगैरह के सारे फॉर्म्स निकल चुके होते हैं, सारी लिस्ट निकल चुकी होती हैं, तो इसलिए मार्च में स्टार्ट होंगे. मेक श्योर यू आर चेकिंग एवरीथिंग time and now, because again and again, because it's important for you to check as well. And I hope this video helps you while your admission process. You are clear about what is going on and what is not. One more thing that I would like to add is कि after sport round एक special sport round भी रखते हैं
विच इज़ फॉर द वैकेंसीज, जो भी SC ST की सीट्स होती हैं उनको कन्वर्ट कर देते हैं। और जो भी बच्चे रह गए हैं, जिन्होंने अगर फॉर्म फिल भी नहीं किया है, तो वो दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं। दोबारा से एप्लीकेशन फॉर्म्स एक तरीके से ओपन हो जाती हैं। दैट्स कॉल्ड स्पेशल स्पॉट राउंड। आपका कोई फ्रेंड वगैरह अगर रह गया तो आप उन्हें इन्फॉर्म कर सकते हो एंड दे कैन फिल दैट गूगल फॉर्म दे लॉन्चेस ऑन द CMAC पोर्टल ओनली। तो उधर आप कर सकते हो और डायरेक्टली आप NSUT जाके अप्लाई कर सकते हो एंड कैन टेक द सीट देयर। So that's it for the video. That's all about it. So I hope this helps you. Thank you watching. If you watched till now, please like, share and subscribe to my channel. It's very new and I really need your support. So if it helped you in any way, so please subscribe. I will be very thankful to you. Secondly, when it comes to the placement criteria and the placement thingy that is going on in NSUT, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगी, तो डोंट वरी अबाउट दैट। प्लेसमेंट्स का भी आपको एक आइडिया मिल जाएगा। इतना तो मैं आपको अभी एश्योर कर सकती हूँ कि इफ़ यू आर कमिंग टू NSUT DTU, तो ये दोनों ही कॉलेजेस एटलीस्ट आपकी ROI तो निकाल देंगे। जैसे कि अगर आप 4,48,000 के अराउंड फ़ी दे रहे हो, तो उससे ज़्यादा की प्लेसमेंट तो आपकी लग ही जाएगी इफ़ यू आर केपेबल एंड यू आर मेंटेनिंग योर CGP ऑल ईयर राउंड। तो आराम से आपको प्लेसमेंट मिल सकती है, ऐसा कोई इशू नहीं है प्लेसमेंट का। और जो प्रॉपर डाटा है, प्रॉपर बात है ऑफ प्लेसमेंट, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। बाय।